global advertiser for innovative outdoor solutions. Saeed Qadri Saab is behind the lyrics of many successful films, including Jism, Saya, Paap, Rogue, Zehar, Nazar, Kalyug, Fareed, Bas Ek Pal, Aisa Kyun Hai, Aisa Kyun Hota Hai, Anwar, Life in a Metro, The Train, Avarapan, Wo Lamhe, Gangster, Raz, Billu. I can just go on, and most importantly, Chanat 1 and 2, Murder 1, 2, and 3, among others. But it's not been an easy journey from Jodhpur to Mumbai and the Indian film industry and the transition from being an LIC agent to a respected and revered poet. The fact that he was an LIC agent shows how well we treat our lyricists in India today. I think for this man, we need to first clap for him. Can we all please clap for him? In this world that rarely understands the story behind the poet's immortal verses, ask Qadri Saab how does he feel, and he will simply call his poems an expression of his avargi or avarapan as he would term it. And I was checking the internet and it said avarapan was a word actually coined by him. So that's pretty interesting. And today we are here to release a book of poems aptly titled Avarapan, a summation of his journey. We have with us the revered Mahesh Bhatt Saab, the immensely talented singer-composer, performer par excellence, Mithun, Mukesh Bhatt ji, Narendra Bajaj ji, Chirag Bajaj, Jayantilal Gada ji, Shyam Bajaj ji, and a whole load of people who would love to be here to be a part of Saeed Qadri Saab's journey. And of course, Ali Peter John, whom I think has been there since journalism ever started. And I'm sure for all of us who basked in the songs that he's contributed for the immortal verses. Sir, you already ensured our lives with our lyrics. Over to Sahil. He will shed some more light on Qadri Saab. Sahil, please. Hello, thank you, Anisha. Good evening, everyone. I thank each one of you who have come here, who have taken out that time from a busy schedule for such a wonderful evening. We are here for the launch of Avarapan, his first poetry collection. Sorry. Qadri Saab needs no introduction. With his glorious career in the Hindi film industry, he has defined himself as the most lovable and talented lyrics writer. His work has always been a part of that revolution which has given a new color and heights to the music industry. Like coming up to his book Avarapan, I will not say it's a book, it's his ups and downs summarized in his own words, his suns and moon, like which we're gonna read and we're gonna find out like it is nowhere like it's very near to our own life story. Whenever like this is the reason all the readers have found himself as a part of their own life. There are many reputed personalities here who have worked with him and who also share a very beautiful relation with him personally and professionally. So they are the better one who can throw a light at Saeed Qadri Saab. So I would request very talented and the lovable Mithun Bhaiya, music composer and director, to come up on the stage and enrich us with his thoughts. Thank you, Sahil. Good evening, everyone. Actually, यहाँ पर आके बात करना मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है. मुझे अपने करियर में 14 साल हो गए. जब मैं 16 साल का था, मैंने ये फैसला लिया था कि मैं हिंदी फिल्म में एक हिंदी फिल्म म्यूज़िक कंपोज़र बनना चाहता हूँ. और देखिए, म्यूज़िक अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है, लेकिन हिंदी सिनेमा म्यूज़िक itself is something that needs to be studied, learned, understood and respected. और मेरे फादर जो यहाँ पर है नरेश शर्मा जी, उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर कंपोज़र बनना है so as equal as your own expression, you have to find your partner in crime, which would be the poet. And my father would take me down to the works of the greats. जितने भी legendary गाने हम सुनते हैं जो हिंदी सिनेमा के फाउंडेशनल एक्सप्रेशंस रहे हैं. आई सॉ शंकर जयकिशन हैड हसरत जयपुरी, मदन मोहन साहब हैड राजा मेहदी अली खान, एंड साहिर साहब obviously.
R.D. Burman had Majdu Sultanpuri, Lakshmikant Parlal had Anand Bakshi, and I saw that these greats, they were not just solo greats, but it was a joint expression of these two people. और मुझे अपना सफ़र शुरू करना था, और वो एक ऐसा दौर था, मैं बात कर रहा हूँ 2004 की, when the quest for sound was overtaking the passion for expression. सब लोग ऐसे दीवाने हो गए थे. There was a generation coming up that was putting all their energies into sound, and this is my personal opinion, I could be wrong. But I wanted to go back. That's what I learned from my father, and also a few very iconic people who influenced me at the age of 19, who are very present in this room over here. But I will come to that later. And at ऐसे time पे I had the privilege, Mukesh Bhatt, who is present over here, what a blessing he has been, because he introduced me to the great Syed Qadri Saab. And हमारा पहला गाना साथ में था from the film Zehar 2005, वो लम्हे वो बातें. उसके बाद हमने एक दूसरे गाने पे काम किया, जो मैं ये घटना यहाँ पे आप लोगों से बांटना चाहूँगा. हमने मुकेश जी की फिल्म का म्यूज़िक कर रहे थे जिसका नाम था कलयुग, एंड मोहित सूरी वॉज द डायरेक्टर, और वी हैड गॉट द ब्रीफ, और धुन भी मुझे मिली थी, और मैंने सईद साहब से फ़ोन पे मैं बात कर रहा था कि इस गाने का, इस किस्म का हमें इसके ऊपर काम करना है, तो मैं आपको जो है सीडी भेज देता हूँ, आप सुन के मुझे आप लिख के दे दीजिए. तो उन्होंने मुझसे फ़ोन पे कहा कि सीडी तो पहुँच जाएगी, ज़रा मुझे गुनगुना के तो सुना. एंड उसी वक्त फ़ोन पे मैंने उसकी जो तर्ज है गुनगुनाई, एंड उसी वक्त उन्होंने मुझे लिख के दिया. विद इन अबाउट 10 seconds ही टोल्ड तेरे पास पेन है, एंड ही रोट जुदा हो के भी तुम मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है. और ये शायरी जब मैंने भट्ट साहब के साथ बांटी, एंड भट्ट साहब सेड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. महेश भट्ट साहब ने कहा कि बाकी लफ्ज़ का इससे अच्छा इस्तेमाल मैंने कभी सुना नहीं. एंड दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड कि मैं खुद भी सीख रहा था. आई वाज 20 years old, और तब मुझे मालूम पड़ रहा था कि क्यों शायरी होती है, क्योंकि लफ्ज़ तो है वो कानों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन शायरी है जो दिल तक पहुंचती है. सफ़र वहाँ पे रुका नहीं, बहुत सारे गाने मैंने उनके साथ किए हैं, अभी भी कर रहा हूँ. इफ आई टॉक ऑफ सॉन्ग्स लाइक मौला मेरे मौला, लोग सुनते हुए ध्यान कभी देते नहीं, लेकिन अगर आपने सुना हो कि रख लूँ छुपा के कहीं तुझको, साया भी तेरा नाम है दूर, रख लूँ बना के कहीं घर में तुझे, साथ तेरे मैं ही रहूँ, जुल्फे तेरी इतनी घनी, मैं याद इनको जब करता हूँ, नहीं जुल्फे तेरी इतनी घनी, देख के इनको ये सोचता हूँ, साए में इनके मैं जीऊँ. हम आगे करें. जरा सो मेनी सॉन्ग्स इस किस्म के ऑनेस्ट एक्सप्रेशंस. दिल संभल जा जरा में सईद भाई ने लिखा कि जिस राह पे है घर तेरा, जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहां से हाँ मैं हूँ गुजरा, शायद यही दिल में रहा, तू मुझको मिल जाए, क्या पता ओ क्या है ये सिलसिला, जानू ना मैं जानू ना. तो ये चलता रहा, दिस एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन. एंड लोग अक्सर कहते हैं कि हाउ ब्लेस्ड वर दोस जनरेशंस व्हेन राजा मेहदी खान वाज देयर, व्हेन साहिर लुधियानवी वाज देयर, एंड आई एब्सोल्युटली एग्री. बहुत मुबारक दौर रहा है, लेकिन आई थिंक आज का दौर भी कोई कम मुबारक नहीं है. वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड दैट वी आर इन द ईरा व्हेन वी हैव Syed Qadri Saab. Thank you. I think I would request Mukesh ji to speak something. Mukesh ji, would you please? Better, I think so. You spoke so much about Syed Bhai that I will be only replicating what you said. But मैं ये कहना चाहूँगा कि सईद भाई जैसे भाई, जैसे कलाकार, जैसे दोस्त, जैसे बोलते ज़िंदगी के हम सफ़र जो रहे, वो इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं जो इतने करीबी से, इतने अपनापन दिखा के
काम करने वालों में से जो होते हैं। तो सईद भाई और हमारा एक फैमिली रिश्ता रहा है, और वी गो बियॉन्ड फिल्म्स, वी गो बियॉन्ड just making movies, making music. It's a very deeply felt emotion जो इनके साथ हम दोनों भाइयों का जुड़ा हुआ है। और इसके आगे मुझे लगता है भट्ट साहब सही कह पाएंगे सईद भाई के बारे में। भट्ट साहब को तो मैं सबसे आखिर में बुलाऊंगा, उससे पहले मेरे और बहुत सारे अजीज़ यहाँ हैं जिन्होंने हमेशा मुझ पे मेहरबान रहे, मेरी हौसला अफजाई किए, और आज वो यहाँ इसलिए मौजूद है कि मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझसे मोहब्बत का रिश्ता रखते हैं। मैं उनकी फ़िल्म लिखूं या नहीं लिखूं, और उनसे ताल्लुकात आज भी बरकरार हैं। इसी सिलसिले में मैं कुमार साहब से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ। मेरे ख्याल से मिथुन ने और मुकेश जी ने काफ़ी कुछ बोला है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। खाली आपसे एक बात पूछनी है। ये कहा जाता है कि आप ये जो दर्द भरे गाने लिखते हैं उसके पीछे कुछ राज है। तो ये क्या राज है वो बता दो सबको आज। वो राज सर ज़िंदगी को बहुत करीब से देखना, रिश्तों को बारीकी से जानने की हमेशा जद्दोजहद, वो तमाम चीज़ें जो ज़िंदगी के जो तमाम मौसम होते हैं, जो आपकी सीधी बात बताओ ना, कौन सा मौसम गड़बड़ हो गया कुछ? वो मौसम सबकी ज़िंदगी में होते हैं। तो वो कोई ऐसी कुछ बात बताओ तो सबको। इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। चलो, थैंक यू सो मच। अब मैं गुजारिश करूँगा श्याम जी से, प्लीज़। तो हेलो, सईद भाई के साथ में हमारा रिलेशन जो है ये फिल्मों से नहीं है, और ये फैमिली रिलेशन है। जब भी ये बॉम्बे आते हैं ज़रूर फ़ोन करके मिलते हैं, या तो जोधपुर पे रहते हैं तो उनको फ़ोन करके बात करते रहते हैं रोज। इससे ज़्यादा क्या बोल रहे हैं। फैमिली रिलेशन। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं यहाँ आज जो खड़ा हूँ, या जो भी मैंने मकाम हासिल किया है, इसका क्रेडिट भट्ट परिवार को जाता है। मेरे बड़े भाई महेश भट्ट साहब, मुकेश जी, यहाँ पूजा है नहीं, पूजा भट्ट, ये तमाम लोग हैं जिनकी वजह से सईद कादरी बना, फिल्म इंडस्ट्री में आया, और आज इस काबिल हुआ कि एक छोटी सी किताब निकाली। उस छोटी सी किताब को भी इज्जत देने के लिए, मेरी हौसला अफजाई करने के लिए आप लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं तहे दिल से भट्ट साहब का और मुकेश जी का, श्याम जी, कुमार जी, रमेश जी यहाँ है नहीं, वो भी बड़ी मोहब्बत रखते हैं मुझसे, और यहाँ जो तमाम लोग आए हैं, मेरे दोस्त नौशाद खान साहब, कोटा से तशरीफ़ लाए मेरे दोस्त गणेश तारे साहब, यंग टैलेंटेड सिंगर दर्शन रावल, एहसान अहरे साहब आइए तशरीफ़ लाएँ, मेरे दोस्त डायरेक्टर हैं ये, रूमी जाफरी साहब, और ऐसी बहुत सारी तमाम हस्तियाँ हैं जो भी जी बिल्कुल जिनकी मैं शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से। और मैं गुजारिश करूँगा भट्ट साहब से कि प्लीज़ आएँ और इस किताब का अपने मुबारक हाथों से विमोचन करें। भट्ट जी आइए सर, प्लीज़ आइए ना। हाँ, बिल्कुल आइए सर, प्लीज़ आइए। श्याम जी नहीं आप बोले आप लोग, अरे सर बिल्कुल। मुकेश जी प्लीज, आप भी आए प्लीज। सर जयंती लाल जी प्लीज कम आइए, कुमार जी प्लीज आइए, बात क्यों नहीं कर रहे? आइए आइए आप आइए ना प्लीज सर, इस काम के लिए तो है, आप आइए प्लीज, आप आइए। एवरीवन प्लीज कम। नरेश जी आ जाइए, आइए अरे देख लिया वो सर, इसको ले ये बड़ा बाद में लाया
कोमल जी आइए ना, बस बिल्कुल सरप्राइज भी पर नहीं लगा कि कोई और बोल रहा है इसके अंदर से। आप पढ़ेंगे? अरे सर प्लीज आप बोलेंगे। अरे 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 कैमरा कहाँ से लूँ? कैमरा लेफ्ट में घुमा ना, पैन करना है, पैन नहीं करना तुझे, बस हो जाएगा। अरे यार ज़्यादा नहीं आया। हाँ चल पीछे बाबू आया है। जल्दी निकले ना वो 7:30 जी। उसके बाद मैं चाहूँगा भट्ट साहब को बुलाऊंगा, वो रोशनी मुझसे ज़्यादा बेहतर डाल पाएंगे। एक गज़ल के चंद अशार पेशे खिदमत हैं। भीड़ में रह के भी तन्हा यहाँ हर एक बशर, भीड़ में रह के भी तन्हा यहाँ हर एक बशर, ऐ मेरे दोस्त यही है तेरे ख्वाबों का शहर। वाह क्या बात है। भीड़ में रह के भी तन्हा यहाँ हर एक बशर, ऐ मेरे दोस्त यही है तेरे ख्वाबों का शहर। और इसका किरदार है, किरदार बदल देता है, इसका किरदार है, किरदार बदल देता है, अपनी शर्तों पे रखा करता है खुद में ये शहर। इसका किरदार है, किरदार बदल देता है, अपनी शर्तों पे रखा करता है खुद में ये शहर। और तुझे बताए बिना तुझ में ही मर जाता है, तुझे बताए बिना तुझ में ही मर जाता है, वो जो इंसान हुआ करता था तेरे अंदर। तुझे बताए बिना तुझ में ही मर जाता है, वो जो इंसान हुआ करता था तेरे अंदर। और जिंदा रहने को कभी ना कभी बिक जाता है, जिंदा रहने को कभी ना कभी बिक जाता है, तेरा ज़मीर भी हो जाता है किसी की नज़र। जिंदा रहने को कभी ना कभी बिक जाता है, तेरा ज़मीर भी हो जाता है किसी की नज़र। और रोशनी इसकी अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं, रोशनी इसकी अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं। क्यों चांद गांव का तुम छोड़ के आए हो इधर, क्या बात है, क्या चांद गांव का तुम छोड़ के आए हो इधर, ऐ मेरे दोस्त यही है तेरे ख्वाबों का शहर। क्या बात है। अब मैं गुजारिश करूंगा मेरे बड़ा भाई, वही खड़े रहना। ये जो सुनाया शहीद ने आपको, ये कुछ दिन पहले ये आके मुझे सुना गए थे दफ्तर। बड़े बरसों के बाद मुझे लगा कि इसके अंदर से कुछ एक अजीब सी नई खुशबू मैंने महसूस की, क्योंकि हिंदी फिल्मों के गाने लिख लिख के इसके अंदर कुछ मर गया था, दफन हो गया था। बिक तो तुम भी गए थे मेरे भाई, बिल्कुल हर आदमी। और फिर रास्ता भूलने के बाद में कहीं से तुमको कुछ अपनी आवाज़ मिली। हम सब बिके हैं, अलग अलग वक्त पे पहले बिके हैं, पर बड़ी मुश्किल से कुछ लोग हैं जो मिलते हैं, जो संभालते हैं हमको। ये जो दोस्ती हमारी है एक अजीब दोस्ती है। 80s में ये आए थे यहाँ पर जोधपुर से लिरिक्स लिखने, हम काश बना रहे थे, आकाश। हम कुछ अपनी आवाज़ ढूंढ ही रहे थे, बस
सफ़र शुरू किया था, तो अभी हम कहाँ, हमारी क्या औकात थी कि हम इनका हाथ थाम के इनको काम दिलवाते। तो ये कुछ देर हमारे साथ घूमे, मगर फिर जैसे लोग थक के भाग जाते हैं, भागे आई। कट्टू जोधपुर जा रहा हूँ मैं फॉर अ बुक लॉन्च। एक अननोन फंक्शन, व्यक्ति का फंक्शन है जोधपुर में। मुझे पता चलता है कि ये शख्स वहाँ पर कहीं रहता है। एक तो यार ऐसा आराम से बोल, दिल करता है कि काश ये टकरा जाए मुझसे। फिर इसका एक पर्सपेक्टिव था, तुम वो पर्सपेक्टिव सुनाओ, फिर हम सुनाते। क्या हुआ, मेरे छोटे भाई हैं, उनका नाम है राजू। तो अखबार में न्यूज़ आई कि भट्ट साहब एक किताब के विमोचन के सिलसिले में जोधपुर आए हैं। तो उसने मुझे कहा कि भाई आपके बड़े ताल्लुकात रहे एक ज़माने में महेश भट्ट साहब के साथ, तो आप क्या चलोगे उनसे मिलने? मैंने मना कर दिया, और मेरे मना करने की वजह बहुत छोटी सी थी कि उस वक्त तक भट्ट साहब एक बहुत लंबा सफ़र तय कर चुके थे। इनका इंडस्ट्री में बहुत नाम हो चुका था, बहुत बड़े बड़े काम कर चुके थे, और इनकी एक इंटरनेशनली पहचान बन चुकी थी। तो मुझे लगा खुदा ना खास्ता अगर इन्होंने मुझे नहीं पहचाना, तो वो जो उनके साथ मेरी बड़ी खूबसूरत मेमोरीज है, मैं उनको बर्बाद नहीं करना चाहता। वो एहसास जो था मुझे कि अगर भाई देव मुझे नहीं पहचाना, तो मुझे वो जो उनके साथ गुजारा अच्छा वक्त था, जो मेरे स्ट्रगल का वक्त था, मैं उस पर कोई दाग नहीं अगर लगाना चाहता। इसलिए मैंने भाई को मना कर दिया। मेरा भाई माना नहीं। अगले दिन सुबह फिर उसने कहा एक बार ट्राई करते हैं। तो अपना स्कूटर लेके आया कि भाई साहब क्या इरादा है? तो मैंने कहा यार जिंदगी में अपने बहुत जलील हुए अपने लिए, तो आज भाई की खुशी के लिए एक बार और जलील हो जाए। नहीं पहचानेंगे तो नहीं पहचानेंगे। आप यकीन कीजिए, जिस होटल में ये ठहरे थे 5 सितारा, मैं वहाँ पहुँचा भाई के साथ। वो जिस शख्स की किताब के लिए ये वहाँ तशरीफ लाए हुए थे, वो सीढ़ियों से उतरते उनकी नज़र मुझ पे पड़ी। मैं लॉबी में एंट्री हुई मेरी, और भट्ट साहब की नज़र मुझ पे पड़ी। आप यकीन कीजिए, मैं अपनी जगह खड़ा रहा, ये सीढ़ियाँ भाग के यार मुझे गले से लगा। मुझे इतनी अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस हुई मुझे कि यार मैंने ये कैसे सोच लिया कि महेश भट्ट मुझे नहीं पहचाना। आप यकीन कीजिए, मेरे उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए। और वो दिन है, राज का दिन है, जो मैं आज यहाँ खड़ा। इन्होंने मुझे कहा कि बेटा मेरी बेटी फिल्म बना रही है। मैंने हाँ अच्छा के बाद में हम सुना, इसने थोड़ा हाफ हार्टेडली सुनाया, थोड़ा सा ये इमोशनल हो गया। मैं ऐसे ही नहीं भाग के आया। तुमने मुझे एक शेर सुनाया था बम्बई में, जब मैं शराब पीता था और तुम भी पीते थे, और हम जू पर बैठते थे और गालियां देते थे सारी इंडस्ट्री को कि हमारा जीनियस कोई पहचानता नहीं है ना, याद है? तो शेर था कि आंख भर आए जिस शख्स की, आंख भर आती है जिस शख्स की, अपने रोने पे मेरे दोस्त क्यों शर्मिंदा है, आंख भर आती है उस शख्स की जो जिंदा है। हाँ, तो ये शेर इन्होंने मुझे सुनाया था। तो मैंने जब देखा सईद को, तो ये शेर जैसे फ्रॉम द मिस्ट ऑफ टाइम एक्सप्लोडेड इन माय माइंड, एंड आई एड्रेस्ड यू विद दैट शेर, एंड देन आई वेंट एंड हग्ड हिम, और फिर मैं उसको ले गया अपने कमरे में। अब वहां से इनका नया चैप्टर शुरू होता है। इसने कहा मुझे आप लेट जाइए, आपके लिए कुछ लिखना है मुझे समझ नहीं आया क्या बोलता है मुझे। तो मुझे उसने लिटा दिया, एंड देन ही सैट डाउन बिहाइंड द डेस्क एंड ही सैट डाउन एंड रोट वेरी पैशनेटली, एंड देन ही गेव इट टू मी। और मैंने उसको पढ़ा, एंड आई फेल्ट समथिंग टर्न इन माय हेड, एंड आई इमीडिएटली कॉल्ड पूजा एंड सेड, पूजा, our film is made. He had just written a song which was dedicated to me. आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में. He just sat down and wrote it there and there. उसका शेर क्या था? जिस धरती पर जिस रास्ते पर तपता सूरज सारी रात नहीं ढलता, जिस रास्ते पर तपता सूरज सारी रात नहीं ढलता, इश्क की ऐसी राह गुजर को हमने चुना है सीने में, आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में, हर दम हर पल बेचैनी है कौन बला है सीने में.
And this song became the compass of Jism. And the most amazing thing about Jism was M.M. Cream, the great music director of India. South India में बसते हैं, ये जोधपुर में LIC की पॉलिसी बेचते थे. मैंने इनसे कहा कि खबरदार तुम बम्बई में आए, अपनी पाकिज़गी को बर्बाद नहीं करना, वहाँ पर आके जाके दफ्तर पे जाके बैठे हो और फिर जलील कर रहे हो अपने आप को. तुम यहाँ पर LIC की पॉलिसी भेजो, यहाँ पर बैठ के ही काम करो. And he worked on the music of Jism with M.M. Cream over the phone. And all the songs were made by him and M.M. Cream over the phone and recorded in Chennai. And that became the beginning. And of course, I remember, Komal, if you remember Saya, you said the music of Saya was outstanding, though the picture did not do well. But I remember Komal telling me, "Ke bhai sahab, kya outstanding music," but the music, as Mithun said, was because of the extraordinary lyrics that were written by Sayyid Qadri. Kathir Shafai साहब मरहूम पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर थे. उन्होंने कहा कि भैया अच्छी शायरी अपना संगीत साथ लेके आती है. ये शायरी की कोख में ही उसका संगीत होता है. And a good music director, Mithun, is a person who doesn't do anything. He just goes to the depth of the words, and in the womb of those words is the melody. And that's what a man like Sayyid अपना M.M. Cream did. वो ज़बान समझते भी नहीं थे, मगर वो 10 मरतबा पूछते थे, "What does this mean, sir? What does this mean, sir? Khala means what, sir? Khala means what, sir?" And then he would understand and then he would compose it. So वहाँ से इनका सफर शुरू हुआ है और अब ये जो है यहाँ पर आ गए. मुझे एक बात का डर है कि तुम जिस कपड़े में यहाँ पर बैठे हो, तो LIC जो बेचता था या पॉलिसी बेचता था, अगर वो कहीं तुम्हारे अंदर दफन हो गया तो वो शायरी कहाँ से आएगी फिर? सो जरा ये शहर से बचो, अपना चांद जो है वहाँ पर छोड़ के मत यहाँ पर आओ. यू आर नॉट वेलकम या सईद कादरी भाभी, ले जाओ इनको वहाँ पर वापस, नहीं तो हमारा शहर जो है पता नहीं यहाँ पर खो जाएगा. But I'm so happy that he is here, and I think ये तो बहाने होते हैं किताब का एक book release and all that. It's a way to come and make memories, and I'm very happy that from the struggle days of the 80s to the magical filmy meeting in Jodhpur and a lost and found story to this happy ending. Who says Bollywood stories are lies? They happen, they happen, they happen. Okay. So, Bansab, please, I would like the family to join in and do a picture. I'm the man with numbers, but I would like to say this, to culminate this with what Bansab said, is that this man who came and joined us with Jism, from Jism till now, Saeed Bhai and Vishesh Films have done 24 films, and we are heading for the 25th film in this year. So we'll be celebrating Silver Jubilee, and it's been what a beautiful Silver Jubilee with Saeed Bhai. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. बिल्कुल. मैं यहाँ जो इस मौके पे तमाम लोग हाजिर हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. कुमार जी, रूमी जाफरी साहब, नरेश जी, मुकेश भट्ट साहब, कोमल जी, श्याम बजाज साहब, नरेंद्र बजाज साहब, चिराग, इवन सुनीता, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ. दर्शन रावल, मेरे दोस्त नौशाद, क्षितिज तारे, गणेश तारे साहब, और यहाँ जो प्रेस आई है उसका भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. और तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे आके यहाँ इज्जत बख्शी. सो नाइस ऑफ यू. मैं गुजारिश करूँगा कि कुछ चाय पानी का नाश्ते का इंतजाम है, आप सब तशरीफ. मिथुन, हाँ, एक प्लीज एक चीज और मैं बता दूं, ये जो आज जो आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, जो आप देख रहे हैं, इसका क्रेडिट जाता है मिथुन को. मिथुन कहाँ है? मिथुन, कम. आप ये जो प्रोग्राम है, इस लड़के की मोहब्बत है बिल्कुल, जो इसने ऑर्गेनाइज किया मेरे एजाज में. और मैं बिल्कुल, और मैं साहिल शेख जो मेरे दामाद भी हैं, इनका ये जो किताब आप देख रहे हैं, ये सब इनकी इमेजिनेशन है. इन्होंने तमाम वक्त लगाया इस पे, और आज किताब आपके साथ. थैंक यू सो मच.
अरे अनुषा बिल्कुल कम ऑन, चलो ये नहीं लेने थैंक यू सो मच। हमारे दोस्त सईद कादरी साहब के बुक लॉन्च पे हम आए थे, कुछ पुरानी यादें ताज़ा हुई और हमने अपने इस लंबे सफ़र को सेलिब्रेट किया। मिथुन जो था उसने मुझे यहाँ चौंका दिया, इतनी अच्छी ये हिंदी बोलता है, मैं कभी सोच ही नहीं सकता था। और सिर्फ हिंदी बोलता नहीं है, बात जो समझाता है बहुत कमाल के समझाता है। ही हैज़ एक्सप्लेन समथिंग टू मी विच इज़ कि अच्छे गाने तभी बनते हैं जब लिरिक राइटर और म्यूजिक राइटर का रिश्ता ऐसा होता है जैसे जिस्म का और रूह का होता है। बिल्कुल। और ये कॉम्बिनेशन ही है जिसकी वजह से इसने इतने हिट गाने दिए हैं। हमारा दोस्त है और मुझे लगता है कि आने वाले कल में जब हिंदी सिनेमा के सफ़र का जिक्र होगा, ख़ास करके म्यूज़िक का जिक्र होगा, तो वो अधूरा होगा अगर आप सईद कादरी मेरे दोस्त का नाम नहीं लेंगे। आई एग्री। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब इससे ज़्यादा बात नहीं होता, मैं जा रहा हूँ। नहीं, ठीक है। जी, मेरे लिए जैसे मैंने कहा कि बहुत फ़ख्र की बात है, क्योंकि सईद कादरी साहब के बारे में ज़िक्र करना मेरे लिए अपने आप में एक बहुत मैं प्राउड फील करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो सच्चे शायर होते हैं वो सिर्फ गाने नहीं लिखते बल्कि फिल्म, जैसे भट्ट साहब ने कहा कि जिस्म उस दिन बनी जिस दिन इन्होंने लिखा कि आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में। कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं जो सिर्फ गाना नहीं लिखते बल्कि फिल्मों को बनाते हैं, एक्टर्स को बनाते हैं, कंपोजर्स को बनाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सईद कादरी साहब उस तरह के राइटर है। इन्होंने एक्टर्स को बनाया है, फिल्मों को बनाया है, और मैं कहूँगा कि मेरे करियर को भी सईद कादरी साहब ने बनाया। सो नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, डेफिनेटली बननी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे मुझे सुनने में आया कि साहिर लुधियानवी साहब की ज़िंदगी पर फिल्म बन रही है, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट। सो आई थिंक एवरी ग्रेट के ऊपर फिल्म बननी चाहिए, और इनका सफ़र भी बहुत ही अनोखा रहा है। पीपल शुड गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम इट। I think that's a filmmaker's decision. I would love to see a film made on the life of Saeed Kadri and Bhatt Sahab. All right. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.